Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. Now we are starting the exercise 5.1 after the completing the theory of this chapter like a complementary angle, supplementary angles, okay, then adjacent angle, linear pair and vertically opposite angles. इतनी theories हमने last lecture में स्टडी की थी. नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 5.1. इस बार भी आपको बता रहा हूँ, आपके पास टीबी टेक्स्ट बुक साथ ही होनी चाहिए. यू कैन राइट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड आफ्टर द राइटिंग द क्वेश्चन, ओके, राइट द आंसर फ्रॉम दिस video. This is the method of how to write in your fair book. Okay, whenever you see the video, you bring your textbook and write all the questions from the textbook, then you can see the video and write the answer. Okay, so the question number 1 is find the complement of each of the following angle. Find the complement. So we know that complement angle, the sum of measure two angle, the sum of measure two angles are 90 degree, it's called the complement of angle. So यहाँ पे ये 20 इसका है, इसमें मैं कितना एंगल ऐड करूँगा तो मुझे 90 डिग्री मिलेगा. तो वी कैन सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन लाइक अ 90 minus 20 is equal to 70. So we can write here complement angle is 70. Okay, complement angle is 70. So now second one is 90 minus 63, it become a 27, what? 27. So we can say that complement angle is 27. The third one, 75. So we can write 90 minus 75, then we can get the complement of 75. So 90 minus 75, it become a 15. Which one? 75, isn't it? Yes. Okay, not a 75, sorry. 57 here. 57. So 90 minus 57. 57 plus 3, it become a 60. 78 and 90, it become a 33. So we can also be write like a complement of 57 is 33. Complement of 57 is 33. Now question number 2 is find the supplement of each of the following angles. Now we know that what is the supplement angle. Supplement angle is the sum of two measurement of angle will be 180 degree, then we can say that both angle will be supplement to each other. So we can write the supplement of 105 is equal to 180 minus 105, it become a 75 is the supplement of 105 is equal to 75 degree. Now supplement of 87 is equal to 180 minus 87, it become a 10 minus 7 is equal to 3, 7 minus 1, 1, 1, 3, 103, I think 103.
93 आएगा, 93. सप्लीमेंट ऑफ 154 is equal to 180 minus 154. It becomes 6. Now here 7 minus 5, 26. Supplement of 154 is equal to 26. Now question number 3 is, identify which of the following pairs angle are complementary and which are the supplementary. So we want to find what is the supplementary or what is the complementary. So here you can see here first, अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री. कितना मिलेगा, 180 डिग्री. अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री. क्या बोलेगा हम, सप्लीमेंट्री. दूसरा वाला क्या है, तो सेकंड वन इज 63 and 27. The sum of the 63 and 27 is become a 90. So we can say complementary. वन 112 प्लस 68, दोनों का एडिशन कितना मिलेगा, 180. जो 180 मिलेगा तो हमें मिलेगा सप्लीमेंट्री एंगल. 130 plus 50, it become a 180, so supplementary. 45 plus 45, it become a 90, so complementary. 80 plus 10, it become a 90, it is also be complementary. Okay, so here question number 1, 2 and 3. Write down with the question and figure in your fair book. So now the question number 4 is, so we can directly write the answer for, okay, answer number 4. What is the question? The question is, find the angle which is equal to its complement. ओके, तो कौन सा ऐसा एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट जितना ही होगा. आप यहाँ पे एक एज्यूम कर ले, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूँगा 40, तो 40 प्लस कौन सा नंबर होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, जो 90 इज इक्वल टू 90 होगा. वी कैन राइट द 50, तो बोथ आर इक्वल, नॉट. इफ वी टेक द 42, देन दिस वन इज द 48 इज इक्वल टू 90. 43 प्लस 47 इज इक्वल टू 90. 44 plus 46 is equal to 90. 45 plus 45 is equal to 90. So 45 is the same complement angle of given number. So we can same here, जैसे complement, दोनों complement सेम कब हो गए, 45 डिग्री पर, वैसे ही सप्लीमेंट में भी होगा ना. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अभी हम लिख लेते हैं. What is the fourth question number? Find the angle which is equal to its complement. 45 degree is the angle which is 45 degree is an angle which is equal to its complement. Which is equal to its complement. ठीक है. Now question number 5, find the angle which is equal to its supplement. अब देखो, जैसे कॉम्प्लीमेंट था उसी तरह सप्लीमेंट होगा. मैं ऐसे कौन से दो एंगल्स लूँगा जिसका जो सेम नंबर के एंगल होंगे, जिसका एडिशन 180 डिग्री होगा. इट्स ऑफकोर्स 90 प्लस 90. It's of course 90 plus 90. So answer number 5 is 90 degree is an angle which is equal to its
supplement, equal to its supplement. Now, question number 6. What? Question number 6. What is the question? The question is, if the given figure, यहाँ पे मुझे एक फिगर दी गई है like this. In the given figure, angle A and angle B are the supplementary angle. Whenever the both angles are supplementary, the sum of both angle is angle 1 and angle 2 is supplementary angle, so that एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा. अगर दोनों सप्लीमेंट है तो इसका मतलब दोनों का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री होगा ही होगा. अब क्या बताया गया है? इफ एंगल ई इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2. अगर इस एंगल को मैं डिक्रीज करूँ, छोटा करूँ, तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा? दैट बोथ आर एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. इसको चेंज करने के बाद भी दोनों एंगल तो सप्लीमेंट्री रहने ही चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही समझा दूँ कि 120 डिग्री है एंगल ए 1, तो एंगल 2 कितना होगा? ऑफकोर्स 60 डिग्री, बिकॉज ऑफ सम ऑफ 120 प्लस 60 180 डिग्री. अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करूँ 20 डिग्री, कितना? 20 डिग्री, इट बिकम 100, है ना? 100 होगा. तो उसका सप्लीमेंट्री क्या मिलेगा? 180 माइनस 100. सो यहाँ पे हमें 20 ऐड करना पड़ेगा, इट बिकम 80. सो स्टिल इट्स रिमेन सप्लीमेंट्री. मतलब एंगल 1 जितना डिक्रीज होगा ना, उतना ही एंगल 2 इंक्रीज होगा. तभी दोनों एंड तक सप्लीमेंट्री बने रहेंगे. अंडरस्टूड? जब एंगल 1 जितना डिक्रीज होगा, उतना ही एंगल 2 इंक्रीज होगा. सो वी कैन राइट हियर एंगल 1 डिक्रीज, दैट एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज. एंगल 2 must be increased by the same degree. By the same degree. मतलब जितना वो कम होगा, उतना ही एंगल 2 must be increased by the same degree. Now, question number 7. So we can write the answer 7. What is this answer question? Can two angles of supplementary, if both of them are acute, obtuse और right, अगर दो एंगल, कोई भी दो एंगल्स समझाने के लिए, कोई भी दो एंगल्स वो सप्लीमेंट है, मतलब दोनों का एडिशन 180 डिग्री है, तो क्या वो दोनों एक्यूट हो गए? यू नो दैट व्हाट इज द एक्यूट? लेस देन 90 डिग्री हो गए, या तो ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री, या तो राइट एग्जैक्ट 90 डिग्री. अगर यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के नीचे हो गए, लेस देन 90 डिग्री, सो इफ यू पुट द 89, ओके 89, इट बिकम अ 178. कितना होगा? 178. तो ये सप्लीमेंट नहीं होगा, मतलब पहला वाला तो एक्यूट तो कैंसिल हो गया. अगर मैं
दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूस लेता हूँ, it means more than 90 degree, let me take the 91, then sum of the two angles will be 182. So ये भी क्या हो गया, more than 180, so it become not supplement. But if we take the right angle 90 and 90, then answer will be 180 degree. So in this question number 7 only we can put the answer 3, sorry. Right, okay, right. क्वेश्चन नंबर 7 में ना, यस, सिर्फ हमें इतना ही लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. नाउ वी आर ड्रॉइंग सम फिगर. A, B, ओके 8 में नहीं है, ये 9th वाला है. 8 में तो क्वेश्चन ही है, ठीक है, 8 में तो क्वेश्चन ही है. इसको हम और नीचे ड्रॉ करेंगे ये लिख लेने के बाद, ठीक है. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? An angle is greater than 45 degree. An angle is greater than 45 degree. Its complementary angle is greater than 45 or equal to 45 or less than 45. अगर आपके पास एक एंगल ग्रेटर देन 45 है, लेट वी टेक द 46, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जिससे 90 डिग्री मिले. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट पुट द 46, it means not greater than 45. We are not put the 45, it's more than 91. So if you put the less than 45, then we can take the 90. So we can write the answer, like an angle greater than 45 degree, its complementary angle is its complementary angle is less than 45. Okay, this is our question 8 answer. So write down the question from the textbook 4, 5, 6, 7 and 8 and write down their answer from this figure and answer. Okay, write down. So now the question number 9 is, in the adjoining figure we have observed this figure and give the answer. मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर ही लिखे, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से लिखने हैं, just remind it. Okay, so observe this figure and the first question is angle 1 adjacent to angle 2? angle 1 मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, लिखा तो यहाँ पे सब कुछ है, समझाऊंगा. angle 1 is adjacent to angle 2. So what is the definition of adjacent angle? The one common vertex. तो यहाँ पे ऑलरेडी वन कॉमन वर्टेक्स है, इस एंगल में भी O आ रहा है, इस एंगल में भी O कॉमन ही है. दूसरी बात, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे ये कॉमन आर्म मिल गया हमें. देखो AOC एंगल 1 में ये कॉमन आर्म है और एंगल 2 में भी यही कॉमन आर्म है. और जो कॉमन आर्म नहीं है, नॉन कॉमन आर्म इज द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. जो कॉमन आर्म नहीं है
वो कॉमन आर्म की दोनों अलग साइड में होने चाहिए, वो तो ऑलरेडी है ही। इसीलिए यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नंबर 2 इज AOC, AOC इस एंगल की बात हो रही है, देखना AOC एडजेसेंट टू AOE, एडजेसेंट टू AOE। ओके, अब कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन ये आई कि ये एंगल AOC वो AOE दोनों एडजेसेंट है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है कि वर्टेक्स दोनों में कॉमन है। बट जो कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म इसमें कहाँ पे है, ये है, क्योंकि AOC और AOD इसमें ये दोनों तो नॉन कॉमन आर्म है। ये कॉमन आर्म एक साइड में है, मतलब कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म की एक ही साइड में है, इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इसीलिए AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। ओके, क्योंकि जो थर्ड वाली कंडीशन थी कि नॉन कॉमन आर्म होते हैं जो एडजेसेंट एंगल के, वो कॉमन आर्म के अलग साइड होने चाहिए, आइदर साइड होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन आर्म के एक ही साइड है, इसीलिए ये एडजेसेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डू COE and EOD from a linear pair? COE and EOD, it's a linear pair? Yes, definitely linear pair, because of COE एक एंगल हो गया, EOD दूसरा एंगल हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट तो हो ही रहा है। देखो, इसमें कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट रे पे है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, इसलिए एंगल COE एंड एंगल EOD आर लिनियर पेयर। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। 4 आर BOD ये वाली बात हो रही है, एंगल नंबर 4 BOD एंड DOA ये वाली बात हो रही है। A supplementary? Yes, it's a supplementary because of they have adjacent angle and linear pair. Linear pair जो होती है वो adjacent सप्लीमेंट्री होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट टॉपिक में समझाया था कि जब भी दो एंगल लीनियर पेयर होते हैं तो वो लीनियर पेयर अपने आप में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये अपने आप में एक तो लीनियर पेयर है, इसीलिए अपने आप में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सो यस, BOD and EOB are the supplementary angle. Now fifth is angle A vertically opposite to 4. A और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे लाइन AB और लाइन CD आर इंटरसेक्टिंग एट O, सो द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल इज 1 and 4. यस, नंबर 6, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5? इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये पूरा होगा COB। मैंने यहाँ पे लिखा देखो COB, या तो 2 और 3 का एडिशन, 2 और 3 का एडिशन, सम ऑफ एंगल 2 and 3। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से लिखना है और आंसर आपको ये बोर्ड में से स्केच ड्रॉ के लिख लेना है, लिख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। यहाँ पे हमें जो पेयर्स है वो हमें फाइंड करनी है। ए एग्जाम्पल्स में मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लाइक 4 and 1, एंगल 4 and angle 1. And second one is
I think yes, angle 5 and angle 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो मेरा एंगल 5 जितना लीनियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमें मिलेगा. नाउ लीनियर पेयर as angle 1 and angle 5, both are the linear pair. The second one is angle 4 and 5. This one is also be linear pair. Angle 4 and angle 5. Here angle 3 and angle 2 plus 1. Angle 3 and angle 2 plus angle 1. इस तरह हम लिख सकते हैं. दोनों का एडिशन करोगे तो दोनों का एडिशन और ये दोनों क्या मिलेगा, हमें लीनियर पेयर मिलेगा. इसी तरह हमें एंगल 1 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी हमें लीनियर पेयर ही मिलेगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 is, what is the question number 11? In the following figure, angle 1 adjacent to angle 2, give reason. Angle 1 is not adjacent to angle 2. Angle 1 is not adjacent to angle 2 because of, the reason is they do not have common वर्टेक्स. इन दोनों के बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं. ये इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, तो कॉमन क्या हुआ, कुछ नहीं. तो फर्स्ट कंडीशन इज कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जो नहीं है इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस. अब देखो यहाँ पे 55 है तो यहाँ पे भी 55 होगा. x इज इक्वल टू 55 बिकॉज x इज वर्टिकली opposite angle to 55 degree to 55. Now y and x is the linear pair. Y and x is the linear pair. Here y and x is linear pair. Linear pair. So y plus 55 is equal to 180 degree. It implies that y is equal to 180 minus 55. So 10 minus 5 it become a 5. 7 minus 5 it become a 2. 125. So here 125 and z is equal to also 125 because they have a vertically opposite angle. So you can also be right here z is equal to 125 because of z and y are vertically opposite angles. Now here again z is equal to 40 because 40 and z is vertically opposite angle. So z is equal to also be 40. Now 40 plus 25 plus x is equal to 180 degree because they are the linear pair. यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करो प्लस x करो तो हमें क्या मिलेगा 180 डिग्री. So here x is equal to 180 minus 65. 180 minus 65. It become x is equal to 115 degree. X is equal to 115. So now here y is equal to 40 plus z. Here again these are the linear pair. So
y plus 40 is equal to 180 degree, so y is equal to 140 degree because of linear pair, because of linear pair. इस तरह से हम पूरा नंबर 1 और नंबर 2 विथ स्केच एंड कैलकुलेशन हम इसको बता सकते हैं. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ब्लैंक्स है. क्या है? ब्लैंक्स. इफ द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, if the two angles are complementary, then the sum of the measure is 90 degree. Number 2, if the two angles are supplementary, then the sum of their measure is 180 degree. Number 3, two angles from a linear pair, two angles from a linear pair is supplementary. What is supplementary? लीनियर पेयर होते हैं, वो लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर का एंगल्स का सम 180 डिग्री ही मिलता है, इसीलिए उसको हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं. नाउ नंबर 4, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फ्रॉम अ लीनियर पेयर, दे फॉर अ लीनियर पेयर, है ना. दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं, और लीनियर पेयर क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. वाइस वर्सा, इफ टू लाइन्स intersecting at a point, two line intersecting at the point, then the vertically opposite angles are, then the vertically, if the two lines intersecting at the point, then the vertically opposite angles always are acute. ओके, यहाँ पे तो इक्वल आएगा ना. जब भी कोई भी दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसा होता है? ऑलवेज इक्वल. क्या मिलेगा? ऑलवेज इक्वल. यही यहाँ पे आंसर है. If the two line intersecting at a point and if one pair of the vertically opposite angle are acute angle, यहाँ पे जो अगर ये acute एंगल है तो ये एंगल कैसे हो गए? ऑब्ट्यूस. क्या मिलेंगे? अगर दो लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है और उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की एक पेयर एक्यूट मिलती है तो ऑलवेज दूसरी पेयर ऑब्ट्यूस ही मिलेगी. दूसरी पेयर ऑब्ट्यूस ही मिलेगी. तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 30 विद द क्वेश्चन राइट डाउन इन योर बुक. ठीक है, अच्छे से बुक में लिख लीजिए. इन द क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग द फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल. यहाँ पे जो हमने फिगर ड्रॉ की है उस फिगर के हिसाब से जो हमें मांगा गया है वो सब हमें पेयर यहाँ पे लिखनी है. पहला क्वेश्चन ऐसा है, ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो होने चाहिए पर ऑब्ट्यूस होने चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो ये यहाँ पे मुझे एक दिखाई दे रहा है AOB और BOC, दोनों ए एंगल और ये एंगल, they are obtuse vertically opposite angle. So we can write here AOB and AOD and COB. Number 2, adjacent complementary angle. एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों में एडजेसेंट एंगल तो होने चाहिए पर दोनों का सम करो तो 90 डिग्री मिलना चाहिए. ऐसा मेरे पास यहाँ पे देखो BOA एंड AOE ये एडजेसेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म है और दोनों का एडिशन 90 डिग्री मिलता है. सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसीलिए एंगल BOA एंड एंगल
AOE are the complementary adjacent angle. Equal supplementary angle. Equal supplementary angle. Supplementary it means सम ऑफ 180 डिग्री और दोनों इक्वल हो ऐसा कोई दिखाई दे रहा है? यस. BOE 90 डिग्री, DOE अल्सो भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है और दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. इसीलिए एंगल DOE एंड एंगल BOE. दिस इज द third answer. Number 4, unequal supplementary angle. Unequal supplementary angle. सप्लीमेंट्री तो होने चाहिए पर अनइक्वल होने चाहिए. 180 डिग्री मिलती है पर बट कैसे 90 नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके अलावा कोई भी. तो मेरे पास यहाँ पे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है लाइक AOE EOC एंगल AOE एंड एंगल EOC. दूसरा वाला एंगल AOD एंड एंगल DOC. थर्ड वन एंगल BOA एंगल BOA एंड एंगल AOD. ये सभी सप्लीमेंट्री एंगल है. सभी का सम 180 डिग्री होता है पर दोनों इक्वल नहीं है. ये और ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, यहाँ पे ये बड़ा और ये छोटा, इस तरह से हम अलग अलग एंगल, बट दोनों का अगर हम एडिशन करने जाइए तो 180 डिग्री ही हमें मिलेगा. नाउ फिफ्थ, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर. एडजेसेंट एंगल बट डू नॉट अ लीनियर पेयर, मतलब 180 नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए. तो ऐसे तो मैंने अभी आपको बताया इस तरह लीनियर पेयर ना हो. ऐसे तो ये रहा पहला वाला है वो भी मिलता है BOD एंड AOE. नंबर 2 BOE and EOC. Then BOD and DOC. इस तरह से और भी एक दो पेयर हमें मिल जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट हियर एंड विद द क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है. तो अच्छे से हैंड राइटिंग से विद द पेंसिल, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन का यूज़ करके पूरी एक्सरसाइज और थियरी फेयर बुक में लिख के मुझे फ़ोटो सेंड कर देना. थैंक यू.